ओम शांति। આજે તારીખ 15 જુલાઈ 2021 बाप दादाना मधुर मीठा महावाक्यों। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। જેવી રીતે દુનિયાનો નિયમ છે, દુનિયાની અંદર ભક્તિ માર્ગની અંદર સિસ્ટમ છે કે પ્રકૃતિની અંદર ગ્રહણ થાય, ચાહે સૂર્યગ્રહણ હોય, ચાહે ચંદ્રગ્રહણ હોય, તો એ દિવસે દાન કરવાની સિસ્ટમ છે। એમ કહેતા હોય છે કે જેટલું દાન પુણ્ય કરીએ એટલા જલ્દી ગ્રહણ છૂટા પડે। અને કોઈ વ્યક્તિ ઉપર રાહુનું ગ્રહણ ચાલે છે, શનિની ગ્રહો દશા નબળી ચાલી રહી છે, તો એ વ્યક્તિને બી એક જ સલાહ આપવામાં આવે છે કે તમે દાન કરો। તો બાબા કહે છે કે આપણા ઉપર તો મોટામાં મોટું રાહુનું ગ્રહણ છે। હવે એ રાહુના ગ્રહણમાંથી મુક્ત થવું હોય તો વિકારોનું દાન દો। વિકારોનું દાન કરશો તો એ રાહુના ગ્રહણમાંથી મુક્ત થઈ જશો। પ્રશ્ન, વૃક્ષપતિ બાપ, શિવ બાબાને વૃક્ષપતિ કેમ કહ્યા? કારણ કે શિવ બાબા બીજ રૂપ છે અને શિવ બાબાની અંદર સમગ્ર વૃક્ષનું સાર સમાયેલું છે, સમગ્ર વૃક્ષનું જ્ઞાન છે પરમાત્મા પાસે, માટે એમને વૃક્ષપતિ કહેવાય છે। तो वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? કારણ કે રાહુની દશા બેઠી હતી, હવે બાબા કહે છે હરેક બાળકો પર બૃહસ્પતિની દશા બેસવી જોઈએ। બૃહસ્પતિ કોણ છે? શિવ બાબા છે। તો બાબા કહે છે હરેક ભારતવાસી બાળકો પર બૃહસ્પતિની દશા બેસાડવા માટે શું કરવું પડશે? બાળકોની કઈ સ્મૃતિ અપાવવી પડે? તો उत्तर, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। बाबा अपना ओरिजिनल धर्मनी याद अपावे छे। तो बाबा कहे छे कि जे तमारो धर्म हतो आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये अति श्रेष्ठ हतो। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चीता पर बैठ काले हो गए, ग्रहण लग गया है। કારણ કે પહેલા કેવા હતા? સર્વગુણ સંપન્ન, 16 કલા સંપૂર્ણ, પરંતુ બાબા કહે છે તમે મુજ જ્ઞાનના સાગરના બાળકો હતા, પરંતુ વિકારોમાં કામ ચિતા ઉપર બેસીને એકદમ કાળા બની ગયા છો, ગ્રહણ લાગી ગયું છે રાહુનું। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। कई स्मृति लावानी छे? આપણે કેવા હતા? સર્વગુણ સંપન્ન, 16 કલા સંપૂર્ણ, સંપૂર્ણ નિર્વિકારી, મર્યાદા પુરુષોત્તમ, સંપૂર્ણ અહિંસક, જે આપણી મહિમા હતી, અને આજે આપણે કેવા બની ગયા છે? તો બાબા આપણને કહે છે કે એવા ફરી બનો, અને એવા બનાવવા હું આવ્યો છું। તો પહેલાં શું કરવું પડશે? દે દાન તો છૂટે ગ્રહણ। તો વિકારોનું દાન કરવું પડશે। ગીત ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? ओम नमः शिवाय गीत છે એમાં કોની મહિમા છે? बेहद के बाप की महिमा। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। ऊंचते ऊंच बाप माना हरेक आत्माओना पिता ए निराकार परमात्मा छे। लौकिक पिता माटे एम ना कहेवाय कि सर्व आत्माओना पिता। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंचते ऊंच, उनका नाम ही है शिव। सर्व आत्माओना पारलौकिक पिता छे शिव बाबा, કે જે સર્વથી ઊંચા છે। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती ही नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है।
કોનું ગ્રહણ લાગ્યું છે? राहुनु, इसीलिए इनको आयरन एज वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, मंगल की दशा, शनि की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा। સૌથી સારામાં સારી દશા હોય બૃહસ્પતિની દશા અને ખરાબમાં ખરાબ દશા હોય તો રાહુની। તો બાબા કહે છે કે જ્યારે આપણને બાબા મળ્યા તો ત્યારથી તો આપણા ઉપર બૃહસ્પતિની દશા બેઠી છે, સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ દશા છે। जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असूल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबाનું અસુલમાં નામ શું છે? શિવ। બાકી અનેક નામ આપી દીધા, સોમનાથ, પારસનાથ, બબુલનાથ, વૈદ્યનાથ, અમરનાથ, કેટલા નાથ પરમેશ્વર, हाँ अलग अलग नाम आपी दीदा, परंतु असूल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ, सत्य चित कहते हैं, फिर कहते हैं वह सुख का सागर है। एक बाजू આપણે શિવની મહિમા શું કરીએ છીએ? શિવ જ્ઞાનના સાગર છે, આનંદના સાગર છે, શક્તિના સાગર છે, સતચિત આનંદ સ્વરૂપ છે। અને બીજી બાજુ કહીએ છીએ वह सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं પરંતુ સમજતે કુછ ભી નહીં। ભારતવાસી શિવની મહિમા ગાય છે પરંતુ શિવની મહિમા શું છે કોઈ જાણતા નથી। एकदम पत्थर बुद्धि हो गई। तो पत्थर बुद्धि किसने बनाया? भारतवासी केवा बनी गया छे? एकदम पत्थर बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि कोने बनाव्या? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारस पुरी था। आज थी 5000 वर्ष पहले भारत भूमि ए पारसपुरी हती, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। भारत में देवताओं केवा हता? पारस बुद्धि हता अने आजे पत्थर बुद्धि मनुष्य रहे छे। पतित, तो पतित कैसे बनते हैं? यह भी बाप ने समझाया है ना, कारण के पारस बुद्धि मांथी पत्थर बुद्धि पतित कई रीते बन्या ए भी बाबाए बताव्युं कि आपणे पहला तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हता, आज विकारी तमोगुणी पतित बनी गया छे। तो बाबा ने समझाया द्वापर से जब काम चिता पर बैठे तो काले बन गए। द्वापर थी काम चिता पर बेसवानी शुरुआत करी, माना विकारों में प्रवेश कर्यो तो काळा बनी गया। काळा एटले शरीरना रूप रंगनी वात नथी, आत्माना रंगनी वात छे। तो काले बन गए। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। भारत में कोनु राज्य हतुं? पारस बुद्धि देवताओं के जेने विष्णुपुरी राम राज्य कहवाता हता, जहाँ सब सर्वगुण संपन्न थे। यह तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ। જ્યારે સતયુગ ત્રેતાયુગ હતું, ભારત પારસ પારસ બુદ્ધિવાળા દેવતાઓ રહેતા હતા। ત્યાં સર્વગુણ સંપન્ન 16 કલા સંપૂર્ણ નિર્વિકારી હતા બધા। તો એ બાબા કે છે તમારી તો મહિમા છે કે જે તમે મંદિરોમાં જઈને દેવતાઓ આગળ ગાઓ છો। વહાં વિકાર તો હોતે નહીં।
અને દ્વાપર યુગથી વિકારોની અંદર પ્રવેશ કર્યો तो रावण राज्य शुरू थे। तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है। राम राज्यनी जगह रावण राज्य आव्યું तो આપણી આત્માઓ પર ગ્રહણ તો લાગે ને। તો બાબા કહે છે હજુ ગ્રહણ લાગેલું છે, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। સૌથી સારી દશા કોની હોય છે? बृहस्पतिनी। तो भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। भारत भूमि पर बृहस्पति की दशा क्यारे होय छे? सतयुग में। फिर त्रेता में शुक्र की दशा तो 2 कला कम हो गई, उसको कहा जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। हाँ, बाबाए हरेक दशाओं बतावी छे कि सतयुगमां कोनी होय छे? तो बृहस्पतिनी। त्रेतामां नीचे आव्या, थोड़ी कळाओ कम थई गई तो त्यां शुक्रनी दशा। द्वापरमां आव्या त्यां शनिनी, अने कळयुगमां तो राहुनी दशा बेसी गई छे। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य पर ग्रहण लागे माना सूर्य ग्रहण थाय तो शू कहता होय छे? दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा कहे छे अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। आ ज्ञान केवुं छे? आत्माओं माटेनुं ज्ञान छे। तो बाबा हरेक बाळकने समझावे छे यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आ निराकार परमात्मानुं ज्ञान छे। अने ए निराकार परमात्मा अत्यारे आत्माओने ज्ञान आपी रह्या छे। आ ज्ञान कोई शास्त्रोनी अंदर लखेलुं नहीं। शास्त्रों के ज्ञान को तो भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। शास्त्रों जे ज्ञान है एने शुं कहेवाय छे? भक्ति मार्ग। अने सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। वैराग्य एटले शुं? आ दुनियाथी आपणी स्थिति उपराम बनी जाए, जेने कहेवाय के आ दुनियाने छोड़वानी बुद्धि लागे, छोड़वानी लगन होय कि हवे जल्दी जल्दी आ दुनिया छोड़ी दईए अने बाबा पासे पहोंची जईए। यह है शूद्रवर्ण। विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह भारत की ही कहानी है। विराट रूपनी अंदर બધા જ વર્ણો बताव्या છે। तो बाबा કહે છે ભારતની જ કહાની છે। विराट रूप बनाते भी हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। भारतना लोको ज विराट रूपનું ચિહ્ન બનાવે છે, ચિત્ર બનાવે છે, પરંતુ ભારતના જે પથ્થર બુદ્ધિ લોકો છે એ સમજતા નથી કે આ વિરાટ રૂપનું ચિત્રની અંદર શું બતાવ્યું છે। પથ્થર बुद्धि क्यों है? क्योंकि पति थे। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारतवासी सतयुग में पारस बुद्धि संपूर्ण निर्विकारी हता। आजे पत्थर बुद्धि संपूर्ण विकारी बनी गया छे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष पहला भारत भूमि केवी हती? स्वर्गीय दुनिया हती, बीजो कोई खंड हतो ज नहीं। यह बाप समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाता है? राजयोग कौन सिखवाड़े छे? शिवाचार्य। शिक्षक ने आचार्य कहेवाय ने, तो बाबाए कह्युं शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। तो ज्ञानना सागर सर्व आत्माओं ने पतित माथी पावन बनाववावाळा एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव छे। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं।
दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। બાબા કેમ આવે છે? તો સર્વ મનુષ્ય આત્માઓ જે દુઃખી હોય છે અને એ દુઃખી રાવણની જંજીરોમાં કેદ હોય છે, એવી આત્માઓને રાવણની જંજીરોમાંથી મુક્ત કરવા, અને એ બી કઈ રીતે મુક્ત કરે છે? જ્ઞાન દ્વારા માર્ગદર્શન આપીને, જીવન ઊંચું બનાવીને રાવણની જંજીરોમાંથી મુક્ત કરે છે। तो उनको रूहानी पंडा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापिस ले जाऊंगा। पंडा माना ब्राह्मण के जे गाइड करे, यात्रा पर लई जाए, यात्रा पर लई जाइने ज्यां तीर्थ स्थान होय त्यां मार्गदर्शन करे कि अहींया आवी पूजा करो, अहींया आम जवानुं, तो एने कहेवाय पंडा। तो शिव बाबा अपना रूहानी पंडा छे, आत्माओने गाइड करी रह्या छे कि हवे क्यां जवानुं छे। बाबा कहते, मैं सबको वापिस ले जाऊंगा, मेरे जैसा गाइड और कोई होता ही नहीं। बाबा कहे छे मारा जेवुं गाइड तो कोई होई ज ना शके दुनिया में। कहते भी हैं, गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं। परम पिता परमात्मा केवा छे? लिबरेटर माना मुक्तिदाता, गाइड माना मार्गदर्शन आपवावाळा, गति सद्गतिनो वारसो आपवावाळा, ब्लिसफुल दयाना सागर, सर्व आत्माओं पर रहम करवावाळा। क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, इसीलिए बाबा आते हैं, रहम करते हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थी, अब काम चीता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? केवा हता? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हता। बाबा कहे छे काम चीता पर बेसीने तमे केवा बनी गया छो? अब फिर बाप आए हैं, वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते। बाबा आव्या छे तो आवीने हरेक मनुष्य आत्माओं पर ज्ञान आपीने, योग करावीने बृहस्पतिनी दशा बेसाडे छे। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। खास भारत भूमि अने आम आखी दुनिया पर राहुनु ग्रहण छे। तो बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। यानी कि राहुनु ग्रहण भी खास भारत भूमि पर छे, तो बाबा भी खास भारतना लोकोनी ज गति सदगति करे छे। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलव्ड बाप हुआ, सब आशिकों का माशुक एक ही है। सर्व आशिक कौन? आपणे सर्व मनुष्य आत्माओं। तो आशिकोना माशुक एक शिव बाबा छे। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं। रहने का स्थान, तमे भारतनी आ खूणे खूणे जुओ कि हरेक स्थाने शिवनु मंदिर होय छे। कोई भी गाम लई लो तो गामनी अंदर जे लोको रहता होय तो ए भक्ति भले कोई भी देवी देवतानी करता हशे, चाहे श्री रामनु मंदिर हशे, चाहे राधे कृष्णनु मंदिर हशे, चाहे लक्ष्मी नारायणनु मंदिर हशे, चाहे कोई देवीनु मंदिर हशे, परंतु हरेक मंदिरनी अंदर एक शिवनी देरी तो होय ज छे। माने एक शिवालय तो होय छे ज्यां शिवनु रहेवानुं स्थान होय छे। तो सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, यह पता नहीं है। सतयुग में छे देवी देवता धर्मना मनुष्य आत्माओं रहे छे,
પરંતુ એ ધર્મ ક્યાંથી આવ્યો, એમાં કોણ રાજ્ય કરતું હતું, દુનિયાવાળા જાણતા નથી। तो सत्युग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। આપણા ઉપર હવે બૃહસ્પતિની દશા બેસી રહી છે અને એ બી કેટલા સમય માટે, 21 જન્મો સુધી એ બૃહસ્પતિની દશા ચાલશે। वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन। वृक्षपति कौन से? ज्ञानना सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। વૃક્ષપતિ કોણ છે? કે જેની સર્વ મનુષ્ય આત્માઓ મહિમા કરે છે। કોઈ એમ ગાય છે કે તુમ હી હો માતા પિતા, તુમ હી હો બંધુ સખા, તુમ હી હો। તો કોઈ એ રીતે એમની મહિમા કરે છે કે તુમ માત પિતા હમ બાલક તેરે, तुम्हारी कृपा से सुख गने। કોઈ પતિત પાવન કરીને યાદ કરે છે। તો सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख गनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। शिव बाबा स्वर्गना रचयिता छे, तो जरूर આપણે સ્વર્ગમાં હોવા જોઈએ। तो बाप समझाते हैं, तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। સતયુગમાં તો સ્વર્ગવાસી હતા, હવે તમે નરકવાસી બન્યા છો। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते हैं, तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो। અત્યારે જે ધર્મના લોકો છે એ પોતાના ધર્મને આગળ વધારવાની કોશિશ કરે છે, તો બાબા કહે છે તમે તો દેવી દેવતા ધર્મના છો, તો પોતાના ધર્મને કેમ ભૂલી ગયા છો। जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे, तो बाप स्मृति दिलाते हैं। बाबा याद અપાવે છે, આપણે ભૂલી ગયા છે એટલે બાબા આવીને યાદ અપાવે છે। तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। जब सतयुग में था त्यारे આપણો ધર્મ શ્રેષ્ઠ આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મ હતો અને આપણા કર્મ બી શ્રેષ્ઠ હતા। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो, तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। અત્યારે આપણે કોણ છે? દેવી દેવતાઓના પૂજારી। તો પછી બાબા કહે છે તમે છો દેવી દેવતાઓના પૂજારી, તો પોતાને હિન્દુ કેમ કહેલાવો છો। भारत का यह क्या हाल हो गया है, जो देवता धर्म के हैं वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। जे देवता धर्मना छे ए विकारी बनी गया, तो विकारी बनवाने कारण पोताने देवता कहलावता नहीं। तो बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान वाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता। बाबा कयु वाक्य बोले छे कि हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। भगवान एक छे, परमात्मा एक छे, परंतु આપણે બધા એમના બાળકો છીએ। तो बाप कहते हैं तुम पूज्य थे, वही पुजारी भगत बन गए हो, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। पूज्य હતા પરંતુ કેવા બની ગયા? દેવતા બની, પૂજ્ય હતા પરંતુ પૂજારી ભગત બની ગયા। હવે ફરીથી જ્ઞાન લઈએ છીએ દેવતા બનવા માટે। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो,
तो जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कोण बनશે? જેને પૂર્યા 84 જન્મો લીધા છે એ જ બાબા પાસે આવીને ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनશે। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे। ब्रह्मा ने प्रजापिता बनाव्या तो एमना बाळको भी हशे। वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। तो बाबा ने जे बाळको छे ब्राह्मण, तो बाबा कहे छे इन ब्राह्मणों को ही तो फिर देवता बनना है। तो बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो बाबा आवीने आ संगम युग में आदि सनातन देवी देवता धर्मनी स्थापना करे छे। यह है कल्याणकारी संगम युग। अत्यारे कयो समय चाले छे? कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। अने अत्यारे जे लड़ाई चाले छे तो बाबा कहे छे आ लड़ाई, आ महाभारतनुं जे युद्ध थशे एने कल्याणकारी लड़ाई कहेवाय छे। क्यों? क्योंकि इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं ना। आ युद्ध ज ना थाय तो स्वर्गना गेट कई रीते खुलशे? तो बाबा कहे छे एटला माटे आ युद्ध ने, आ लड़ाई ने कल्याणकारी कही। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। कोनी दशा बैठी छे? अविनाशी बृहस्पति शिव बाबा नी दशा छे। तो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। तो सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा। सतयुग में कोनी होय छे? बृहस्पतिनी। अने त्रेता में आव्या तो शुक्रनी दशा बेसी गई। फिर नीचे गिरते आए मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। कारण के कर्म कर्या ने, विकारों में गया तो उल्टी दशाओं शुरू थई गई। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। कारण के अपने कर्मों एवा कर्या, विकारों में गया, विकृत कर्म करवा लाग्या तो दशा उल्टी बेसी गई। हवे बाबा आव्या छे तो अपनी ऊपर बृहस्पतिनी दशा बेसाड़ी छे। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। बाकी सब है झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। बाबा कहे छे दुनियानी अंदर बीजा बधा छे, बधा झूठ छे। कारण के कोई कोईनी सदगति करी नहीं शके। एक शिव बाबा छे जे आपणी आत्माना पिता पण छे, शिक्षक पण छे अने सद्गुरु भी छे, अने आपणी आत्माओनी सदगति करे छे। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। आ कई दुनिया छे? विकारी दुनिया। ने सतयुग छे निर्विकारी दुनिया। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। लड़ाई, मारा मारी, क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। अत्यारे केवा लड़ाई झगड़ा, मारामारी, बीमारीओ केटલું બધું ચાલે છે। જ્યાં જુઓ ત્યાં મૃત્યુ, અકાલે મૃત્યુ। हाँ, तो खूने नाहक खेल से बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए।
એક બોમ્બ ફેંકે તો જટ એક જ સેકન્ડની અંદર જે આખા વિસ્તારના બધા જ લોકો એક સાથે મૃત્યુ પામે। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। बाबा શું કહે છે? मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। यह कौन से बाप ने कहा? मन मना भवનો મંત્ર કોને આપ્યો? शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यो निराकार तो तुम भी हो। शिव बाबा भी निराकार છે તો નિરાકાર તો આપણે પણ છીએ। परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, बाबा नहीं आते। हम सब पुनर्जन्म में आते हैं, शिव बाबा नहीं आते। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा जाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। અત્યારે સર્વ મનુષ્ય આત્માઓ પતિત બની ગઈ છે, કારણ કે આ અત્યારે સમગ્ર જાડ જળજળીભૂત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરેલ છે। दुनिया बिल्कुल ही पुरानी हो गई है, अब फिर से उसको नया तो बनाना पड़े। જેવી રીતે ઘર જૂનું થઈ ગયું, ઘર પડવાની તૈયારીમાં હોય તો પછી નવું તો બનાવતા હોય ને, થોડું એમાં ને એમાં રહેતા રહીશું। તો બાબા કહે છે કે હવે આ દુનિયાની એવી હાલત થઈ ગઈ છે, તો બાબા નવી દુનિયા બનાવશે। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेविन कहा जाता है। भारत ने શું કહેવાય છે? हेविन, स्वर्ग। गाया जाता है, गठ ही में सूर्य, गठ ही में चंद्रमा। तो सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट होता है। आज दुनियाની અંદર જોઈએ તો ફૂલોનો બગીચો લોકો તૈયાર કરતા હોય, પણ કેટલો નાનો બગીચો હોય, અને જંગલ કેટલા મોટા મોટા હોય છે કાંટાના। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। और फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सत्युगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। ત્યારે દુનિયામાં શું છે? कांटाનું जंगल। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। રાવણના આવવાથી આપણે કાંટા બની ગયા। હવે બાબા આવે છે આપણને રૂહાની ગુલાબ બનાવવા માટે, ફૂલ બનાવવા માટે। यह है कांटों का जंगल, आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बंदर से भी बदतर कहा जाता है। બાબાએ શું કહ્યું? આજકાલ મનુષ્યની અંદર કેટલો ક્રોધ છે, થોડી બી વાતચીતમાં ઝઘડો થઈ જાય તો એકબીજા સાથે મારામારીમાં આવી જાય। તો બાબા આજકાલના મનુષ્યને શું કહે છે? બંદર કરતાં બી બદતર છે। તો બાપ कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। કોની દશા બેઠી છે? બૃહસ્પતિની। तो बाप कहते हैं, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। કારણ કે વિકારોનું દાન આપી દો અને વિકારોનું દાન આપી સંપૂર્ણ નિર્વિકારી બની જાઓ। तो संपूर्ण निर्विकारी यहाँ बनना है, फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सत्युग को कहा जाता है शिवालय। शिवालय कोने कहेवाय छे? सत्युगी दुनियाने। तो सत्युगी दुनियामां तो बहुत सुख होय छे कि ज्यां देवी देवताओनुं राज्य होय। कलयुग को कहा जाता है वेश्यालय। यह वेश्यालय रावण ने स्थापन किया है।
अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है, तो कैसे बनेंगे? पतितमांथी पावन बनवानुं छे तो कई रीते बनशो? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? कई रीते पावन बनीशुं? त्रिवेणी संगम में के गंगा नदी में स्नान करवाथी पावन बनी जईशुं? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हूँ। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि हैं जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं। हाँ, बाबा कहे छे कि त्यां नदी, नाळा, तलाव ज्यां बी पाणी जोयुं तो त्यां स्नान करवा लागे छे, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी बुद्धि पारस बना रहे। शिव बाबा શું છે? પારસનાથ। અને शिव बाबा આવીને આપણી બુદ્ધિને પારસ બનાવે છે। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। आ कांटानी दुनियामांथी फूलोना बगीचामां जवुं होय तो आपणी अंदर जे कांटा छे के जे बीजाने भी दुख आपे छे के आपणे भी दुख आपे छे, ए कांटाने फेंकी दो। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने वाले का पुरुषार्थ करना है। समय छे कल्याणकारी, सर्वात्माओनुं कल्याण करवानुं समय छे। तो बाबा कहे छे आ समय पर, आ संगम युग पर शूद्रमांथी ब्राह्मण, ब्राह्मणमांथी देवता बनवानो पुरुषार्थ करो। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। वरदान, संगठन में एक मत और एकरस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। तो बाबाए एक बार अव्यक्त मुरली में कह્યું હતું કે બાબા સાથે સ્નેહ છે એ તો એમાં બધા જ પાસ છે, કારણ કે બાબા સાથેનો તો હરેકની સ્નેહ છે, તો એ પેપરની અંદર બધા પાસ છે। પણ બીજો સ્નેહ કયો? તો બ્રાહ્મણ પરિવાર સાથેનો સ્નેહ। તો બાબા કહે છે બ્રાહ્મણ પરિવારની અંદર, સંગઠનની અંદર સ્નેહનું નિશાની કઈ? तो एक ने कहा, दूसरे ने माना। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। અને એકબીજાનું સ્નેહ, પ્રેમ, સંગઠનમાં કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ જુએ ને તો એને એમ થાય કે આ એક પરિવારની જેમ બધા રહે છે, અને એ પ્રેમ જોઈને એ આવવાનું હિંમત રાખી। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है, गेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। क्योंकि माया ने भी खबर है कि अहींया एकता है, हिम्मत है, गेराव है, तो त्या माया नहीं आवे। पण ज्यां विखवाद हशे, ज्यां एकता नहीं, ज्यां संगठन में मतभेद है, तो माया 100% प्रवेश करे छे। तो एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। गई वखत बाबाए शुं कह्युं? तो सेवा अने योग
અવ્યક્ત મૂલ્યમાં બાબાએ કહ્યું હતું ને, સેવા અને યોગમાં બેલેન્સ હોવું જોઈએ. તો બાબાએ કહ્યું સેવા એ જ કર્મ ને, તો કર્મ અને યોગનું બેલેન્સ. તો એના માટે કઈ સ્થિતિ જોઈએ? એના માટે અવ્યક્ત સ્થિતિ જોઈએ, કે 1 સેકન્ડમાં શરીરધારી, 1 સેકન્ડમાં નિરાકારી. તો એ સ્થિતિ જ્યારે બનશે ને તો કર્મ અને યોગનું બેલેન્સ બનશે. બીજું, કર્મ અને યોગનું બેલેન્સ બનાવવા માટે જે ક્ષેત્રની અંદર આપણે કર્મ કરી રહ્યા છે, જે લોકોની વચ્ચે કર્મ કરીએ છીએ, ત્યાં બી એક મત અને એક રસ સ્થિતિ હશે તો ઓટોમેટિક યોગ લાગતો હોય છે. અચ્છા, ઓમ શાંતિ.